I'll record. Okay. Thank you, sir. Yeah. So when we do the when I'm saying that bookkeeping part, so what we are covering in the bookkeeping part in the 11th standard is this, that in 11th we are on the daily basis. If you make the accounts on the daily basis, you make the account, you are making the subsidiary books. You are making the, see, अभी मेरे हाथ में चोट लग गई एक्चुअली, इसीलिए थोड़ा सा, but anyway, subsidy book. Can you understand this word, subsidy book? Subsidy book means, for example, you are studying commerce, and commerce in which you have the accountancy subject, economics, business studies, English, and math or other optional subject. So at least you have minimum 5 notebooks also. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, why you have 5 notebooks? Can't you have one notebook for all the subjects? Then, sir, no, sir, because all the subject will be mixed up and we won't be able It to will be find creating a mess in that. So what is more important is that the transaction which is occurring on a very regular basis and very frequent, many times in a day, right? It can, big companies maybe 1,000 times in a day. In the digital company, maybe lakhs and lakhs on Amazon or Flipkart, it's lakhs and lakhs of transactions a day. So that those transactions which are occurring on a very regular basis, they can't be in a mixed, you can say, accounts. It should not be mixed. So they should not be mixed. Hence we have subsidiary books. We make, that is, for all cash transaction, we make cash book. Got it? Okay, sir. So all cash transaction which is occurring in the business, in your business or firm, then you take it, write it down in the cash book. कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा. Just understand the first what exactly we are doing in this. Second is about the purchase books. All purchase, what we are doing, purchase means, purchase में बेटा 2 चीज ध्यान रखना पड़ेगा. Purchase book में, cash book में all cash transaction, purchase में only credit transaction, because cash transaction will come in the cash book. So credit transaction इसके अंदर आएगा बेटा. क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पहला इसका रूल है. दूसरा रूल है इसमें, इट शुड बी ऑफ योर कोर बिजनेस. कोर बिजनेस, कोर का मतलब क्या हो गया? योर मेन बिजनेस. फॉर एग्जांपल, इफ योर बिजनेस इज टू मैन्युफैक्चर दिस पेन एंड सेल इन द मार्केट, so whatever the material you are purchasing for manufacturing this pen, that will be your purchase, and it is also referred as goods in the at the time of entries. When we buy the goods, it is called purchase. When we sell the goods, it is called sales. Got it? Okay. हाँ, अगर आपने कोई अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, you have bought some computers for your business, that will be not your purchase, that will not come in the purchase book, in spite it is credit, it is on credit. Why? Computer you have purchased for your office, for your different purpose. Your business is to actually manufacture this pen. तो कोर बिजनेस से अलावा कोई भी चीज आप हम बिजनेस में खरीदेंगे तो उसका सेपरेट एंट्री हो जाएगा, बट परचेज बुक में वही आएगा जो आपका मेन बिजनेस का प्रोडक्ट है, वही, उसके अलावा कुछ नहीं. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. फाइन. डोंट हेजिटेट टू से नो. अगर नहीं समझ आ रहा बेटा बिल्कुल स्ट्रेट कहिए, नहीं आएगा मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन. ठीक है ना, कोई No, sir. जल्दी नहीं है भागने की. This one is Fine. So all purchase book mean transaction, all purchases which are on credit, not on cash. That is very important. All cash transaction will be conducted in the cash book. So all transaction which is related to purchase on credit basis, it is of core business. For your core business, definitely it will be taken in purchase book. Same thing, sales book. ये अलग अलग बुक बना लिया हम लोगों ने, क्योंकि ट्रांजैक्शन इतने फ्रीक्वेंट होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि अगर इनको एक बुक में रखा जाएगा, एक जगह रखा जाएगा, तो इट विल क्रिएट अ मेस, यू विल बी कंफ्यूज. So sales book is also a subsidiary book. Again, the same 2 points will be coming in this. ये दोनों पॉइंट फिर आएंगे. Sales should be on credit. Cash sales will be in the cash book. Cash sales किसमें आएगा बेटा? It will be coming in the cash book, right? So sales book में क्या आएगा? Sales book में आएगा आपका credit transaction, and that too of your
बिजनेस, मेन बिजनेस एक्टिविटी जो कर रहे हैं, आपने बिजनेस को कोई लैंड बेच दिया या कोई स्क्रैप बेच दिया या कोई फर्नीचर बेच दिया, नो, दैट इज गोइंग टू बी इन द सेपरेट ट्रांजैक्शन, उसकी सेपरेट जगह एंट्री होगी। ये जो पेन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसको रोज बेचते हैं आप, मार्केट में सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो आप बेच रहे हैं, दिस इज योर मेन बिजनेस, हेंस यू आर गोइंग टू हैव द सेल्स बुक, और सेल्स बुक में सिर्फ इससे रिलेटेड चीजें ही आएंगी, योर पेन या स्टेशनरी जो भी आपको बिजनेस है। गॉट इट और नॉट बेटा? So the sales on credit is credit comes in sales book. नहीं, not credit comes in sales books, we write the entries of credit sales in the sales book. हमने उधार पे Okay. जो भी हम उधार पे बेचेंगे अपने कोर बिजनेस की चीज, उसको हम सेल्स बुक में लिखेंगे, ये मेरा कहा, ठीक है? Yes, sir. राइट। फोर्थ पॉइंट आपका आ गया इसके अंदर, आपका परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक का मतलब क्या हो गया? परचेज रिटर्न बुक मतलब, परचेज रिटर्न बुक का मतलब है कि जो गुड्स आपने परचेज किए थे उसमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ गुड्स जो है उसका उसमें स्पॉइलेज हो या कुछ टूट फूट हो या कुछ खराब हो, पॉसिबिलिटी है। यू आर बाइंग इन अ बल्क क्वांटिटी, यू आर बाइंग है ना बल्क क्वांटम, जब बल्क क्वांटम हम कोई चीज खरीदते हैं उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ सकती है, तो व्हाई यू गोइंग टू हैव द लॉस, एज यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रिटर्न इट बैक टू योर वेंडर कि सर ये चीज खराब आई है, हम आपको वापस कर रहे हैं। और वो जो वापस करते हैं उसको किस में लिखेंगे आप? परचेज रिटर्न, परचेज जो आपने किया उसको रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न बुक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और यू कैन से इट इज रिटर्न आउटवर्ड, इट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। आया समझ बच्चे? Yes, sir. ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। अगेन it is all on the credit basically, and again the business, core business का ही होगा ये भी पार्ट। परचेज बुक से जो चीज आई है परचेज बुक में, उसमें से जो चीज रिटर्न की जाएगी उसको कम करने के लिए वी हैव टू राइट डाउन इन द थिंग्स इन द परचेज रिटर्न बुक। जैसे आपने सेल्स बुक किया वैसे आपका यहाँ पे एक सेल्स रिटर्न बुक भी आएगा। फिफ्थ पॉइंट, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक इसको कह सकते हैं, या हम इसको और रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं। सो वॉट एवर द गुड्स यू हैव सोल्ड टू योर कस्टमर्स, आपने बहुत सारे कस्टमर्स को सामान बेचा, ऐसा हो सकता है ना पॉसिबल कि कोई किसी कस्टमर पे कोई सामान गया हो, वो कुछ खराब हो सकता है या वो टूट फूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो ऐसे कंडीशन में वो Yes. आपको आके रिटर्न करेगा। एंड इफ यू वांट टू कीप योर कस्टमर हैप्पी एंड कंसिस्टेंट, डेफिनेटली आप उसका कस्टमर को उसका गुड्स वापस भी करेंगे, रिटर्न भी करेंगे। तो उस तरह के जो गुड्स आप वापस लेते हैं या लेंगे, सेल्स किया है वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड। गॉट इट और नॉट बेटा? Yes, sir. इनवर्ड बुक, ठीक है ना? इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक भी होता है, दैट आई विल कंसीडर आफ्टरवर्ड्स। तो दीज आर द मेजर बुक्स व्हिच वी हैव, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी बुक्स। ये आपके सबसे पहले बनते हैं, और इसमें जो एंट्रीज नहीं आती, आप देखिए ये तो मेन बुक्स हो गए। आपके पास स्कूल में क्या होता है, आपके पास मेन नोटबुक्स होते हैं, इसके अलावा एक एल्मनैक होता है या एक रफ डायरी भी होती है, रफ नोटबुक्स भी होता है ना, कि जो इन सब में नहीं आएगा वो किस में आएगा? रफ नोटबुक में आता है, यस और नो? Yes, sir. तो वो हाँ, other books होती है ना? हाँ अदर बुक्स हो गए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? हम ऑल, इसके अलावा जो आएगा वो बुक आएगा, दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर, वी कॉल इट एज जर्नल प्रॉपर। क्या कहते हैं बेटा से? जर्नल प्रॉपर। गॉट इट और Journal. नॉट? ठीक है, समझ में आया? Yes. जो इन बुक्स में नहीं आएगा उसका एंट्री किस में आएगा? जर्नल प्रॉपर में आएगा, ये ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज हैपनिंग ऑन अ वेरी डेली बेसिस, ये सब आपका किस में हो रहा है? डेली बेसिस पे हो रहा है। गॉट इट? ठीक है, तो ये Yes, तो sir. आपका, ये तो सब्सिडी बुक हो गया अब आपका। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज आपका नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा क्या? दैट इज अगर आपसे मैं कहता हूं, सपोज इफ आई से टू यू कि टेल मी हाउ मच मनी वी हैव टू गिव टू एक्स इन कंपनी, हमें कितना पैसा, सपोज यू आर एन अकाउंटेंट एंड आई एम योर बॉस एंड आई एम आस्किंग यू कि मुझे आप बताइए एक्सन कंपनी को कितना पैसा देना है हमें या उनसे कितना पैसा लेना है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि आपको पूरा हर दिन का उसका ट्रांजेक्शन दिखना पड़ेगा।
कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव गिवन द थिंग्स टू देम, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव परचेज द थिंग फ्रॉम देम, कौन सा क्रेडिट पे परचेज किया, कौन सा कैश पे परचेज किया। ये सब जगह देखने के बाद आप पूरे मंथ देखेंगे और फिर लास्ट में मुझे बताएंगे कि सर इसमें हमें इतना लेना है, इतना देना है। एंड इट बिकम्स अ वेरी 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 टीडियस टास्क। ये बहुत आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा। तो इसको क्या करा हम लोगों ने, इसको जो डेली चीजें हो रही थी उसको मंथली हमने समराइज कर लिया, किस फॉर्म में, इन द लेजर फॉर्म। तो ऑल ट्रांजैक्शंस व्हाटएवर इज बीन कंडक्टेड इन द बिजनेस, उनका एक सेपरेट सेपरेट हेड बना लिया हमने, कैश का, ट्रांजैक्शन का, बैंक का। तो कैश बुक है तो आपका कैश का अकाउंट नहीं बनता, बाकी बैंक अकाउंट अलग से बनेगा। फिर एक्सन कंपनी का, सुरेश एंड कंपनी, राम एंड सन्स, जितने भी डेटर्स क्रेडिटर्स, जितने भी लोगों से हमारी डीलिंग्स हो रही हैं, उन सब का सेपरेट एंट्री बनेगा। फर्नीचर परचेज है, कंप्यूटर परचेज है, और जो भी आपने सेल्स परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जितने भी किए, इनका एक अकाउंट बनेगा। दैट विल बी समराइजेशन ऑफ ऑल डेली इनटू मंथली। क्या करेंगे उसको आप, नाउ यू गोइंग टू समराइज द डेली ट्रांजैक्शन इनटू मंथली, कि एक खट्टा पता चल जाए कि मंथ के एंड में कि हमें किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, या कौन सा बैलेंस कितना रह गया, कितना बचा हुआ है हमारे पास। यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? हेलो। Sir, econ. हाँ, मंथली बेसिस पे, जब हम मंथली बेसिस पे समराइज करेंगे इसको, मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जब समराइज करेंगे, डेली बेसिस पे हमने यहाँ कर लिया, मंथली बेसिस पे करेंगे तो उसको हम किस पे ले जाएंगे, वी विल मेक दैट इज अकाउंट दैट इज कॉल्ड लेजर। लेजर्स, ठीक है ना। तो ये हम लेजर्स बनाएंगे, इज ए कंसोलिडेशन ऑन ए मंथली बेसिस। जो भी हमने किया कैश में ट्रांजैक्शन, जो भी हमने परचेज किया, सेल्स किया, अब क्रेडिट परचेज, कैश परचेज को इकट्ठा कर लिया जाएगा एक जगह पे, ऑल परचेज एट वन प्लेस। कैश परचेज भी ले लो, क्रेडिट परचेज भी ले लो, तो पता चल जाएगा टोटल परचेज हमारा कितना हुआ इसमें, इस मंथ में, टोटल सेल्स हमारे इसमें मंथ में कितना हुआ। तो दिस समराइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जब तक समराइज नहीं करेंगे तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि इस मंथ का टोटल सेल्स कितना था, टोटल आपका परचेज कितना था, आपका कैश परचेज कितना था, कैश सेल्स कितना था, आपका डेटर्स को कितना देना है, क्रेडिटर से कितना, डेटर से कितना लेना है, सॉरी, एंड क्रेडिटर्स को कितना देना है हमें। तो ये सारे चीजों के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं और उसका अकाउंट का नाम होता है लेजर। I'll be telling you afterwards then when you're going to do the things in the process. First you understand from daily to monthly what we make ledgers. Got it? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब मंथली के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है, दैट इज वी आर गोइंग टू गो फॉर द ईयरली। हम इसको जाते हैं ईयरली। तो ईयरली के लिए क्या करना पड़ता है, ईयरली के लिए ईयरली में हम क्या करते हैं, वी हैव द ईयरली का मतलब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च होता है, अप्रैल टू मार्च इज अ फाइनेंशियल ईयर, एंड कैलेंडर ईयर इज फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 31st ऑफ दिसंबर। गॉट इट बेटा? तो अकाउंट हम कभी भी क्लोज कर सकते हैं, बट टैक्सेशन इज ऑलवेज ऑन इन द मार्च बेसिकली, बट अकाउंट हम 31 दिसंबर भी क्लोज कर सकते हैं और 31 मार्च भी कर सकते हैं, एज योर कंपनी और यू आर कंफर्टेबल। सो ईयरली अकाउंट अब डेली ये बन गया, मंथली बन गया समराइजेशन। अब मंथली को हम किस में समराइज करेंगे, ईयरली में समराइज कर देंगे। और ईयरली के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट बनता है। ईयरली के लिए हमारे पास क्या बनता है बेटा, वी मेक टू स्टेटमेंट, ठीक है ना। वी मेक व्हाट, स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट में क्या मतलब, स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली, स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट्स। देखिए बेटा, अकाउंट्स में और स्टेटमेंट में फर्क क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अकाउंट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, मींस फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। ये ड्यूरिंग द ईयर हम जो कर रहे हैं वो अकाउंट है, यानी कि डेली जो बनाया आपने, सब्सिडी बुक बनाया, जो आपने लेजर बनाए, ये हमारा क्या है, ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, इसलिए इसको हम अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन स्टेटमेंट का मतलब है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब इट इज ऑन 31st मार्च और 31st दिसंबर। 31st मार्च या 31st दिसंबर को हमारा क्या स्टेटस है वो जो बताता है, वो क्या कहलाता है, आपका स्टेटमेंट कहलाता है। व्हाट द डिफरेंस अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, समझ आया बेटा? Yes, sir. फाइन। अकाउंट इज ड्यूरिंग द ईयर, फ्रॉम, अकाउंट्स का मतलब इस जगह से इस जगह तक, यानी कि 1st अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31st मार्च तक चल रहा है, तो ये हमारा अकाउंट हो गया। लेकिन ये अकाउंट चल रहा है ड्यूरिंग द ईयर, मींस ड्यूरिंग द ईयर इज अकाउंट, दिस इज अकाउंट, ये आपका अकाउंट।
लेकिन जब स्टेटमेंट की बात करेंगे तो स्टेटमेंट मींस दिस इज स्टेटमेंट, पॉइंट ऑफ टाइम, टुडे, आज की डेट में हमारा स्टॉक कितना है, तो दैट इज वी आर गोइंग टू मेंशन इट इन द स्टेटमेंट। तो यहाँ बनेगा आपका स्टेटमेंट। क्लियर बेटा? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारे पास दो तो स्टेट, कि जैसे ये तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ, और इसके बाद जो एक पर्टिकुलर डे मतलब 31 मार्च को ही स्टेटमेंट होता है, 31 फिर मार्च या 31 दिसंबर, ओके। जब हमारा अकाउंट क्लोज करेंगे ना, बिकॉज हम जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं, तो 11th स्टैंडर्ड में आपका अप्रैल से स्टार्ट हुआ सेशन, 31 मार्च को क्लोज हुआ, तो अकाउंट जिस दिन क्लोज होगा उस दिन आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगी आपको। वो रिपोर्ट कार्ड का है पूरे साल एनुअल रिपोर्ट है आपका, यस और नो? Yes or no? यस सर। So that annual यस report card is going to give you your performance in your academics, how you have performed in the whole year in the academics. ऐसी बिजनेस को भी तो चाहिए परफॉर्मेंस, कैसे मेजर करेंगे बिजनेस का परफॉर्मेंस? तो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है, हम कहते हैं इसे इनकम स्टेटमेंट। वी कॉल इट एज व्हाट? क्या कहते हैं इनकम बेटा? स्टेटमेंट। रिपीट रिया, इनकम स्टेटमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एसटी। तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब हो गया दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कह देते हैं, अकाउंट है नहीं बेसिकली, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहा जाता है, पहले इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते थे, लेकिन अभी भी आपके बुक्स में लास्ट में आप जाएंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अकाउंट लिखते जरूर है लेकिन इट इज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मींस बिजनेस का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो टू अर्न द प्रॉफिट। एंड आपको यही ना पता चले कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में कि लॉस हो रहा है, देन यू आर नॉट डूइंग चैरिटी। So you must be knowing your performance at the end of the year, 31st December और 31st March, कि भाई मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस है, क्या चल रहा है? प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट है, लॉस है तो कितना लॉस हो गया, शुड आई कंटिन्यू द बिजनेस और आई शुड क्विट द बिजनेस? तो लॉट ऑफ डिसीजंस यू आर गोइंग टू टेक ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। यस और नो? गॉट इट? यस सर। So income statement give you the your performance of your business in the terms of that is profit and loss account. एंड आपका बिजनेस का पोजीशन स्टेटमेंट को हम कहते हैं, दिस नेक्स्ट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट, जो पोजीशन स्टेटमेंट है वो क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर फादर, पोजीशन का मतलब होता है दैट इज वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना? आप किसी घर जाते हैं, सपोज है ना, यू गो टू सपोज हम चाहते हैं अंबानी जी के यहाँ जाते हैं, मुकेश अंबानी के जाएंगे, तो क्या होगा भाई? एंटिला इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतने कार्स हैं इनके पास, हेलीकॉप्टर्स हैं, इतना नेटवर्थ है, इतना सारा इनके पास, ये एसेट्स हैं, इनके संपत्ति है। और इनके लायबिलिटीज मतलब इन्होंने लोन कितना ले रखा है, इतना अच्छा 2000 करोड़ लोन फ्रॉम द बैंक एंड दिस एंड दैट, तो इनकी लायबिलिटीज हैं। तो किसी भी पर्सन की, किसी भी बिजनेस की एंटिटी की जो पोजीशन है, उसके एसेट्स और लायबिलिटी से पता चलता है कि उसकी संपत्ति कितनी है और उसके दायित्व मतलब लायबिलिटीज कितनी है। तो हमें अपने बिजनेस की पोजीशन भी अगर आपका एक हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? वी मेक द बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट के लिए? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट जो होता है बेटा, वो आपका क्या शो करता है? इट शोज द पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ योर बिजनेस। दैट मींस इट टेल्स यू अबाउट द हाउ मच लायबिलिटीज यू हैव इन योर बिजनेस, किनको देना है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, बैंक का लोन है, क्रेडिटर्स को लोन है, आपने क्रेडिट उधार में जो है स्टॉक खरीदा हुआ है, रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है, तो किनको किनको हमें पे करना है ना? आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, वेजेस है आउटस्टैंडिंग, जो भी आपको देने हैं लायबिलिटीज, वो आपके लायबिलिटी साइड में आएंगे। और जो आपका एसेट्स होता है वो आपका एसेट साइड में आता है, ये क्रेडिट इस साइड में। एसेट्स मींस लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, आपके फिक्चर्स, स्टॉक, आपका कैश, कैश एट बैंक, ये सारी चीज हमारे क्या दिखाते हैं? दैट इज एसेट। तो बिजनेस का एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बेसिस पे आपको लोन मिलता है। Suppose you want to take loan from the bank, the bank will check your how much asset you have and how much liability you have. If you don't have the good amount of asset, लैंड, बिल्डिंग, फिक्स एसेट आपके ज्यादा अच्छे नहीं है, तो आपको लॉन्ग टर्म लोन दे नहीं सकता बैंक। आपको लायबिलिटीज चुकानी ज्यादा है, एसेट कम है, तो नोबडी इज गोइंग टू गिव यू द लोन। गॉट इट और नॉट? गॉट इट बेटा? यस सर। सो बिजनेस के लास्ट में जो हम बनाते हैं ईयरली स्टेटमेंट में, वो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। द इनकम स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द पोजीशन स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, which gives you the detailing about the liabilities and the asset of the company. I hope it is clear to you. यस सर।
Fine. So this is all you're going to do in your 11th standard, from the subsidiary book to the general proper, to the ledgers, to the income statement, profit and loss account, and position statement and balance sheet. This whatever you are going to make in this 11th, this is been covered in the bookkeeping part. इसको हम बुककीपिंग पार्ट में कवर करते हैं. अब आपके कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे BRS है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस है ना, आपके डेप्रिसिएशन है, ऐसे बहुत सारे आपके जो है चैप्टर्स हैं. वो आपके इन चीजों को कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, या कैसे हम कुछ चीज कैलकुलेट करेंगे उसके लिए, या कैसे हम असर्टेन करेंगे कि हमारा बैलेंसेस या लेजर जो बन रहे हैं या अकाउंट बन रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसको देखने के लिए वो कुछ हमारे जैसे ट्रायल बैलेंस है, वो हमारा दैट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, बट अगेन इट इज नॉट अ कंपल्सरी स्टेटमेंट. उसको हम जरूर बनाते हैं लेजर के बाद, क्योंकि लेजर के बाद बनाने से क्या होता है, हमें बैलेंसेस लेके देखना पड़ता है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर नहीं मैच कर रहा है तो हम फिर अपना लेजर में कहीं गलती होगी हमारी, या कहीं हमारी सब्सिडी बुक में गलती होगी, या कहीं हमारी जर्नल में गलती होगी, तो हम उस गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं. अदरवाइज लास्ट बनाते समय जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उस समय हमें पता चलता है कि कोई गलती है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल काम है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो वेयर वी हैव मेड द मिस्टेक. तो कुछ आपके ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो, या अकाउंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स एंड विद एक्यूरेसी टिल द फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड्स एट दैट पीरियड. क्लियर बच्चे? यस सर. चलिए, तो ये आपने जो सीखा ये है बेसिक्स. अब इसका हम आगे चलते हैं. वी आई टेल यू दैट, अब मैं जल्दी आता हूँ जर्नल एंट्रीज पे, कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर हमारे जो वो किस पे बेस करते हैं. व्हाट द ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन व्हाट? Transactions are based on what? So transactions को हमने बेटा बेस किया है, that is I'll just make it fast for you. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हम अगर करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह से आप समझ लेंगे इसको. डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अकाउंट्स हमारे जो हैं ट्रेडिशनल मेथड में, अकाउंट्स मैं इसका थोड़ा डिटेल्स कर दे रहा हूँ उसके अंदर. यहाँ आपको मैं डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट आर द साइड्स. आपके लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो डेबिट होगा, राइट हैंड साइड जो होगा वो आपका क्रेडिट होगा. दीज आर द साइड्स एंड बेसिकली, एंड आई विल गिव द डिफरेंट डेफिनेशन टू यू अगेन सेपरेटली, बट डेबिट एंड क्रेडिट आर द साइड्स ऑफ द अकाउंट्स व्हेन वी मेक अकाउंट. गॉट इट बेटा? अब जर्नल एंट्रीज आप करेंगे या सब जो भी कुछ करेंगे उसके लिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट में आपको डबल एंट्री सिस्टम हमारा है. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब यही है कि हम जो भी एंट्री ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी एंट्री दो जगह दिखाएंगे, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट. तो इससे जो है गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वंस यू राइट समथिंग ऑन डबल एंट्री करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली गलतियां कम से कम होगी. तो ये हमारा एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है और हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, दैट इज हाउ टू मेक द जर्नल एंट्री, राइट. तो आपका जर्नल एंट्री में आपका जो पहला आता है वो आता है, दैट इज फर्स्ट कम्स दैट इज योर which account? Your account comes, that is you have the personal account. पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का मतलब है विच इज रिलेटेड टू पर्सन. इट इज रिलेटेड टू किससे रिलेट करता है बेटा? ये पर्सन से. भाई बिजनेस में हम जब डीलिंग करेंगे, लेन देन करेंगे, तो डेफिनेटली पर्संस आएंगे. बट अकाउंट्स में जो पर्सन आते हैं वो अकाउंट्स में एक पर्सन नहीं होता है. अकाउंट्स में हम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन. कैन यू टेल मी व्हाट आर द दोस? कभी इसको करा आपने? नहीं किया बेटा अभी तक? नो सर. अच्छा ठीक, कोई बात नहीं. इसमें आपके अकाउंट्स में आपके जो है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? नेचुरल पर्सन का मतलब Those लाइक are made by God.
क्रिएशन ऑफ गॉड। क्रिएशन ऑफ गॉड है, हम लोग सभी लोग क्रिएशन ऑफ गॉड है वैसे तो, चाहे फिजिकल चीज ले लो चाहे हम ह्यूमन बींग्स को ले लो, तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल पर्सन बिकॉज हम लोग वी कैन ब्रीथ, वी हैव इमोशंस, वी ईट ड्रिंक, राइट, सो वी हैव यू कैन से वी सोशलाइज, तो ये हम नेचुरल पर्सन के वो हैं फीचर्स हैं। सो आई जस्ट नेम इट हियर, राम है, रहीम है, वॉट एवर में बी, राइट, तो ये इस तरह से जितने भी लोग पर्सन आएंगे बिजनेस में उसको एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, एंड दे आर नेचुरल पर्सन। वन ऑफ द वन टाइप फर्स्ट टाइप ऑफ द पर्सन इज इन अकाउंट इज नेचुरल पर्सन। सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड आपका आ जाता है दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? So business firms, या institutions. बिल्कुल सही बेटा, वेरी नाइस, यू नो वेरी वेल, सब तो तुम्हें आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है दैट इज ऑल फर्म्स, जितने भी फर्म्स हैं, शॉप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, शॉप्स हैं, एनजीओज हैं, जितने एनजीओज हैं, जितने इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, स्कूल है, बैंक्स हैं, सब ले लीजिए इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट्स है, कंपनीज है, तो all these things further you can say these all are artificial person, they have, इसको भी हम एक separate entity मानते हैं क्योंकि they have a legal status। अब कोई भी फर्म होगी उसको वो रजिस्टर्ड होगी, वो अपने नाम से अकाउंट्स बना सकते हैं, वो अपने नाम से ट्रांजैक्शंस जो है डीलिंग कर सकते हैं, एज अ पर्सन सेम पर्सन कैन डू, दे हैव द स्टैम्प, उनका एक अपना ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होता है, स्टैम्प होता है, तो उस स्टैम्प की एक वैलिडिटी है, उसकी वैल्यू है बेसिकली। सो आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते लेते हैं जैसे वो उस फर्म के बेसिस पे या कंपनी के बेसिस पे कर सकते हैं। पर्सन कैन डाई बट द कंपनी कैन गो, दैट इज उसकी जो लाइबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटीज अलग अलग दिखाते हैं, लिमिटेड या अनलिमिटेड जो होती है। कुछ लोगों की कुछ कंपनीज की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप की, कुछ की जो कुछ की है लिमिटेड है, लाइक आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उनकी लिमिटेड है। तो ये इसके अलावा जो लाइफ स्पैन है उनकी जो है बहुत समय तक चल सकती है कंपनीज। तो ये सारी चीजें जो है बहुत रहती है क्योंकि उनके अपने एक आइडेंटिटी है, और वो दे कैन लीगली सू समवन एंड समबडी कैन सू दैट कंपनी आल्सो। आप चाहें तो उस कंपनी में केस कर सकते हैं क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी है, उसको हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं अकाउंट्स में। दैट इज नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन आर टू डिफरेंट यू नो इन अकाउंट्स। गॉट इट बेटा? गॉट इट? Yes, sir. थर्ड पर्सन आता है बेटा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या हो गया? दैट इज समवन, समथिंग व्हिच रिप्रेजेंट समवन। फॉर एग्जांपल जो आपके जो ना ये नेचुरल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करे, वो थर्ड फॉर्म हो गया, दैट इज पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फॉर एग्जांपल कैपिटल, द वर्ड कैपिटल रिफर्स टू द ओनर, यस और नो? कैपिटल किसको Yes, रेफर sir. करता है? व्हेन द ओनर पुट्स द मनी एंड द एसेट्स इन द बिजनेस, तो वो ओनर जो है वो पर्सन है। पर्सन कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करेगा वर्ड उसको? कैपिटल। क्या करेगा वर्ड? कैपिटल। गॉट इट? Capital. Yes, sir. So capital is a representative person because they are that is representing the owner, that is a natural person। ऐसे ही आपका इसमें आता है जैसे ड्राइंग्स आता है। ड्राइंग्स किसके लिए यूज होता है? अगेन द व्हेन ओनर विड्रॉज द मनी फॉर पर्सनल यूज और द एनी एसेट फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ओनर के अलावा ड्राइंग्स कोई कर ही नहीं सकता। तो ड्राइंग वर्ड इज ऑलवेज बीन स्पेसिफिकली बीइंग यूज्ड फॉर द दैट इज ओनर, ओनर के लिए यूज किया जाएगा। तो जो ओनर के लिए यूज किया जाएगा तो अगेन इट इज रिप्रेजेंटेटिंग द होम ओनर। जब भी आप ड्राइंग्स की बात करेंगे तो वो हमेशा ध्यान आएगा आपको कि हाँ ये तो ओनर के बारे में बात कर रहा है कि उसने कुछ पर्सनल विड्रॉ किया होगा अपने बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूसेज। तो ये ड्राइंग्स होता है। ऐसे डेटर्स हो गया। डेटर्स का मतलब क्या है? डेटर्स है, Debtors are the person to whom we give goods on credit. या दे आर गोइंग टू गिव यू द मनी व्हिच दे हैव बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू। सो आपने जो भी सामान बेचा है उसके बदले वो उधार आपको चुकाएंगे। सो दे आर योर डेटर्स, वो देनदार है। तो आपका मिस्टर एक्स भी देनदार हो सकता है, मिस्टर वाई भी हो सकता है, मिस्टर जेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बिकॉज यू हैव सोल्ड टू मेनी पीपल्स ऑन क्रेडिट। तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? इंडिविजुअली वो ए है, बी है, सी है, एक्स एंड वाई जेड है, राम श्याम मोहन कोई भी हो सकता है। लेकिन जब ग्रुप की बात करेंगे तो इन द ग्रुप इट इज बीन कॉल्ड एज व्हाट? एज डेटर्स। गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. तो ये आपका क्या हो गया? डेटर हो गया। तो डेटर
is representing the group of person और institution, possibility है। ऐसे क्रेडिट भी है जिससे हमने उधार लिया है, ऐसा एक फर्म से ले सकते हैं, किसी एक पर्सन से ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों से ले सकते हैं उधार, तो उन लोगों का ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। तो these words are representative person. I hope you got it. Yes, sir. ठीक है, रूल क्या है बेटा, इसका रूल है डेबिट का, दैट इज डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। आपको जो चीज नहीं समझ आ रही थी जनरली में, उसका रीजन यही है कि ये आपको क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए सपोज यू हैव सोल्ड द गुड्स टू मी ऑन क्रेडिट, आपने मुझे उधार पे बेचा सामान, तो क्या आप मेरा नाम याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? जस्ट टेल मी यस और नो। तो सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करें। Yeah, what I'm saying is that कि suppose you have sold the goods to Mr. Rupesh. So when you are selling the goods to Mr. Rupesh, are you going to remember my name or not? Yes, sir, I will You are going to remember it because you have, and you'll write it down in your notebook or in a diary or accounts that I've sold the goods to Mr. Rupesh on credit on such and such date of such and such value. तो अब इसमें जहां आप उधार पे आपने बेचा, तो क्या होगा, मिस्टर रुपेश आ गया, पर्सन आ जाएगा आपके दिमाग में, अच्छा पर्सन है, तो पर्सन का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अच्छा मिस्टर रुपेश इज अ रिसीवर और गिवर, अब बताइए रिसीवर हूं मैं गिवर हूं? Sir, you are receiver. I'm a receiver. So what you're going to do me, that is Rupesh account debit. Got it? Okay. Got it or not? Same thing. Suppose Yes, sir. suppose I have sold the goods to you on credit. मैंने आपको गुड्स उधार पे बेचा है, तो आप देखिए उधार पे बेचा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा नाम याद रखेंगे, बिकॉज यू हैव टू पे द मनी टू मी, आपको उसको भी याद रखना पड़ेगा। तो जब आपको पे करना है तो आप मुझे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे तो क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैं रिसीवर हूं या गिवर हूं। Okay, sir, you are the giver. I'm the giver. So what are you going to do in this credit? Got it? Okay. Yeah. फाइन। सो ये रूल को हम अभी Yes, sir. जर्नलिस्ट करेंगे तो हम समझेंगे, लेकिन ये आपका बेस है बेटा, यही अकाउंटिंग इक्वेशन का भी बेस जाएगा, ये आपका जनरलिटी का भी बेस जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर योर फ्रॉम द दैट इज अकाउंटिंग पॉइंट, अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये अगर क्लियर है आपका तो आगे की चीज सब क्लियर हो जाएंगी। यू कैन इजिली डू योर 12th एंड फर्दर स्टडीज इजिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट बेटा आपका आता है अकाउंट, रियल अकाउंट। नेक्स्ट कम दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट मीन्स इट इज रिलेटेड विद एसेट्स, ये संपत्ति से रिलेट करता है, एसेट से रिलेट करता है। एसेट का मतलब यहाँ पे किस चीज से है, एसेट्स का मतलब है दैट इज एज आई टोल्ड यू दैट इज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट्स भी हैं हमारे पास, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर, जो लंबे समय एक साल से ज्यादा चलेंगे जो एसेट्स, वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। और आपके जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं वो आपका शॉर्ट टर्म का मतलब करंट एसेट्स हैं, उस हम कहते हैं दैट इज आपका स्टॉक है, कैश है, बैंक है, विच विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो एक साल में कंज्यूम हो जाएगा, एक साल में यूज हो जाएगा एसेट, दैट इज द करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आर द लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स। ठीक है बेटा, गॉट इट? तो Yes, sir. इसमें भी आपके बेटा दो तरीके से एसेट्स हैं हमारे, मेजरली कैटेगराइजेशन हमने दो में किया है। वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू, वन इज द रियल अकाउंट में आ गया आपका टैंजिबल एसेट, वन इज आपका टैंजिबल एसेट, tangible, and second is intangible. Tangible intangible का मीनिंग क्या है तो आप जानते हैं, tangible means something which we can see, which we can touch, right? I can see this is a computer, this is a table, I'm writing with a pen. So all those things which we can touch, we can see, and we can which we can and it is having its value basically, so they are all tangible assets, right? So for example, you have land, furniture, fixtures, example of land, building, furniture, fixtures, furnitures, all etc etc etc. These with a physical, they have physical in feature content, तो उसके हमको कहते हैं tangible assets। और intangible assets कहते हैं हम लोग, that is which is having the value but it cannot be seen, it cannot be touched, you can only feel the value. For example, the goodwill,
अगर सपोज आपने एक अभी शोरूम खोला अपने लिए, है ना, यू हैव ओपनड अ शोरूम, योर फादर हैज ओपनड अ शोरूम एंड यू वांट सम सेलिब्रिटी टू कम एंड इनॉग्रेट, आपने जो है शाहरुख खान को बुलाया कि हमारे उसको इनॉग्रेशन करने के लिए, तो शाहरुख खान विल डेफिनेटली कम, बट ही विल चार्ज अ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू, एक अच्छा खासा पैसा आपसे चार्ज करेगा, वो एक करोड़ 2 करोड़ चार्ज करेगा, और वो आएगा और इनॉग्रेशन करेगा, 15-20 मिनट आधा घंटा बैठेगा, चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, and that it creates a publicity for you in the whole you can say जितने भी आसपास आप लोकल हैं नेशनल लेवल पे, कि भाई शाहरुख खान ने ये एजेंसी आपकी या शोरूम को इनॉग्रेट किया, तो आपको ऐड करने की जगह पब्लिसिटी मिल जाएगी उसके अंदर, तो एवरीबॉडी स्टार्ट नोइंग इट कि हाँ अच्छा भाई शाहरुख खान इसको आया था करने के लिए इनॉग्रेट, लेट्स गो एंड सी इट। तो ये गुडविल है, द रेपुटेशन वैल्यू ऑफ और वैल्यू ऑफ अ पर्सन और अ फर्म, उसको गुडविल हमें दिखाई नहीं देती है, बट इट्स हैविंग इट्स वैल्यू। ऐसी आपका पेटेंट है बेटा, पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ठीक है ना, ट्रेडमार्क है आपका, ट्रेडमार्क्स हैं, ये सब चीज आप देखिए, पेटेंट्स, कोई फॉर्मूला होगा या कोई मेडिसिन का फॉर्मूला हो सकता है, या कोई आप जैसे मैगी मसाला है उसका एक फॉर्मूला होगा, पेप्सी का एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला अगर आप यूज करें, सपोज आई वांट टू मेक कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम लाइक पेप्सी एंड आई एम यूजिंग द पेप्सी फॉर्मूला, तो अगर मैं उनसे परमिशन नहीं लेता हूँ, आई डोंट टेक द राइट्स फ्रॉम देम, देन दे विल सू मी एंड आई विल बी बिहाइंड बार्स। ऐसी आप देखिए मूवीज बनती हैं, बुक्स बनती हैं, पब्लिकेशन होता है, उसमें कॉपीराइट का सिस्टम होता है। तो कॉपीराइट क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई कॉपी करके उसको, अगर आप यूज करिए उसको, कोई इशू नहीं है, बट अगर उसको आप कॉपी करके सेम आप बेचते हैं, यू आर यूजिंग इट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एंड विदाउट सीकिंग एनी परमिशन, देन डेफिनेटली इट्स अ वायलेशन ऑफ द राइट्स। तो आप वो उसको लीगली वायलेट कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए द यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो ट्रेडमार्क है, Yes. इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, विदाउट परमिशन यू कैन, आई कैन produce the cool drink, I can put the logo of the Pepsi, provided I should be getting the permission and I pay for that, ठीक है ना, उसकी वैल्यू जरूर होगी, ठीक है ना। सो अकाउंट्स में बेटा, ये आपके रियल में अकाउंट्स में, दैट इज एसेट्स में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आ जाते हैं, और इनका रूल क्या है बेटा, इनका रूल क्या है, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल आपको अपने आप में बोलना पड़ेगा बार बार, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Debit what comes in and credit what goes out. यानी कि कोई हमने सामान खरीदा, कोई एसेट खरीदा, इन हो गया तो डेबिट कर देना, कोई सामान चला गया तो क्रेडिट कर देना, सिंपल, गॉट इट। कैश आया तो डेबिट, कैश इज सम, कैश मतलब क्या है, संपत्ति, एसेट है, कैश आएगा तो इन में डेबिट, जाएगा क्रेडिट। बिल्डिंग खरीदी हमने तो बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग एज एसेट, आपका डेबिट, जाएगा हमने बेची तो क्रेडिट। आया समझ नहीं आया बेटा? Yes, sir. फाइन। सर इसमें मैंने ये सुना था कि जो एसेट्स आते हैं इसमें बैंक और डेटर्स नहीं आते हैं. We don't count them. बैंक्स एंड डेटर्स नहीं आते हैं, देखो डेटर्स Yes. तो, डेटर तो बेटा आपका जो है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना, तो डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, सो डोंट मिक्स विद डेटर विद द रियल अकाउंट, ठीक है ना। आपका बैंक का क्यों नहीं आता, मुझे समझ नहीं आया, मतलब व्हेन द मनी इज बीन सम वन ऑफ योर क्लाइंट और कस्टमर हैज डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों नहीं होगा? From which Sir, perspective I'm not getting it? You just go through it and discuss me later on, because this is maybe some other perspective, otherwise it is not possible. बैंक अकाउंट तो आता है, बैंक अकाउंट आता है, ठीक है बेटा। okay, sir. चलिए लास्ट में हम लोग देखते हैं बेटा, आपका अकाउंट में जो लास्ट रूल है वो है आपका, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। वी हैव व्हाट, नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट में हमारे बहुत सारे जो मेजर आ जाते हैं, वो आ जाता है, दैट इज, इसमें दो हम कैटेगराइजेशन ले लेते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या रहता है, दैट इज यू हैव आपका एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, ठीक है ना। इसका
रूल क्या है कि हमारा एक्सपेंस और लॉसेस जो भी होते हैं दे यूज्ड टू डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस यूज्ड टू डेबिट। बिजनेस में देखिए खर्चा होगा ही होगा, यस और नो? जो Yes. जो जो करंट ईयर में खर्चा होगा उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। जो एक साल से ज्यादा में खर्चा होता है मींस यू हैव लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग अ फर्नीचर, तो इट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझिएगा। एक्सपेंस हमेशा होता है फॉर द करंट ईयर, फॉर एग्जांपल योर फादर बॉट द vegetables, they are the expense. He bought a dress for you is a, that is expense, वो खर्चा है, ठीक है ना? एक्सपेंडिचर क्या है? सपोज ही बॉट अ कार, he bought a house, then it because it will be used or it will be consumed in a n amount of years, 10 साल, 5 साल, 15 साल यूज करेंगे आप उसको, 20 साल तक यूज करेंगे, मे बी मोर देन दैट आल्सो। तो जितने हम ज्यादा, एक साल से ज्यादा यूज करने वाले चीजों को हम क्या कहते हैं? उसमें अगर हम कोई चीज पैसा लगाते हैं तो एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो एक साल से कम के लिए होगा उसके लिए हम कहेंगे एक्सपेंस। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू मींस इनकम, इनकम आता है बेसिकली, इनकम जो अर्न कर रहे हैं हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, और इनकम, प्रॉफिट एंड गेन को, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन को हम क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं, Credit. ठीक है ना? ऑल एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स आर बीन क्रेडिटेड। तो ये एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो प्रॉफिट क्या होता है मुझे अच्छा बताइए। सपोज दिस इज अ पेन विद यू ऑफ 10 रुपीज, ये 10 रुपीज का पेन था, आपने अपने फ्रेंड को 12 रुपए बेच दिया। 10 रुपीज का चीज आपने 12 रुपए में बेच दिया, तो दैट मीन्स व्हाट? 2 रुपीज का क्या आपने क्या अर्न किया? Profit and प्रॉफिट अर्न किया। नो, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट तब होता है जब आप रेगुलर काम करते हैं, when you do the things on a regular basis and it is your core business activity, it is your core business activity, means core business activity का मतलब क्या हो गया कि means you are selling this pen, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं आप, इस पेन को रोज आप बेचते हैं, 10 रुपए का पेन 12 रुपए में, 14 रुपए में, then it is called profit। आपने कभी कर लिया कोई काम, एक दिन 10 रुपए का पेन आपने 12 रुपए बेच दिया, that is not as profit, that is a gain basically, that is a गेन, ठीक है ना? और गेन आपका जो है एक तरह से कभी कभी होता है, उसको भी कहते हैं, और कभी कभी हम जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी व्हाट वी से, सपोज आप जैसे अभी अभी आपका रेनी सीजन का भी सेल लगेगा, सेल लगेगा तो आपने कोई सपोज ड्रेस खरीदा आपने 40% डिस्काउंट पे, या शूज खरीदा आपने 20% डिस्काउंट पे, तो व्हेन यू आर बाइंग दोस थिंग्स ऑन डिस्काउंट, दैट इज यू आर रिसीविंग, देयर इज अ रिसीविंग कॉन्सेप्ट। You cannot say that I have earned discount. You have not earned the discount. You have received the discount. तो डिस्काउंट या गेन जैसे कुछ होता है तो आपका गेन होता है। तो ये सब हमारा क्या रूल क्या है? दैट इज इनकम एंड प्रॉफिट और गेन इज क्रेडिटेड, एक्सपेंस एंड लॉस बिजनेस में होगा ही होगा, वो हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। गॉट इट? गॉट इट? हाँ बच्चे, yes, sir. क्लियर है? हाँ, तो ये 3 रूल आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का, जिसमें रिसीवर, गिवर, राइट, इन, आउट, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये कैसे यूज होता है, कैसे हम करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, जनरल ट्रीज में, आई विल बी टेलिंग यू आफ्टरवर्ड्स, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो राइट नाउ आई एम पुटिंग ऑफ विद योर क्लास। आज जो हमने पढ़ा उसको मैं वीडियो करके आपको भेज दूंगा, एंड यू गो अहेड विद दैट, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बिट ऑफ द थिंग्स, कुछ तो समझ में आया Yes, होगा, sir. I have. ठीक है? Yes, sir. चलो चलिए, यू विल बी कंफर्टेबल इन द डेज, गो, डोंट वरी, ठीक है बेटा? Okay. Thank you, sir. And you have to Thank attend the class, you have to attend the class 6 to 7 today in the evening also, you. ठीक है Okay. बच्चा? Yeah. God bless So, बेटा। can you add me in the group? Can you Yeah, add my number in the group? okay fine, I'll add in your group, no issue। Thank God you, bless sir. बेटा, God bless बेटा, take care।